Welcome to my online lecture series on basic electronics, and today I am going to discuss about PN junction diode capacitance. So first of all we should know about the significance of this topic. Okay, so what is the significance of PN junction diode capacitance? Why we are going to study this PN junction diode capacitance anyways? So if we talk about a component design in very high frequency range, then the capacitance imparted by PN junction diode will be also going to considerable, because the component at very high frequency will be going to very sensitive towards a little change in capacitance value. So we have to know the junction capacitance value imparted by PN junction diode or PN junction. Okay, so this is the significance of studying the PN junction diode capacitance. So before going to start this video, I would just like to recall the previously discussed theme, which was biasing of a PN junction. Okay, so what we had studied in our previous video, we had studied about how can we bias a PN junction diode. Okay, so we had provided an external source of energy to our PN junction, and thus we have biased our PN junction. And there are mainly two kinds of biasing. The very first one was forward biasing and the second one was reverse biasing. In forward biasing case, we had connected our battery positive terminal with the P type and battery negative terminal with the N type of the PN junction. And in reverse biasing case, the situation was just the reverse. Okay. So what will be happening if we connect our PN junction in this way? So if we connect our PN junction in this way, the majority charge carrier will start to diffuse from P side to N side and N side to P side. Okay, and finally the depletion region width will be going to be 0. And if we talk about the reverse biasing case, then this charge carrier, majority charge carrier, will be going away from the junction, and thus the depletion width will be going to increase in case of reverse biasing mode. So these three things were happening with the biasing situation. Okay. Now the point is how a PN junction will behave like a capacitor. Okay. So the answer is, as you can see here, this is the capacitor and there will be two terminals associated with the capacitor. One is cathode, another one is anode. Okay, and there will be two metallic plates. Okay. So if we compare this capacitor with this situation and this situation, we will be going to learn like PN junction will also behave like a capacitor, no matter in which biasing mode we had connected our PN junction. Okay, so let's see that. So in reverse bias, you can see here there are immobile charged ions across the junction, and in case of forward biasing mode, there are mobile charge carrier across the junction. So there is a net accumulation of charges across the junction in case of reverse bias, and there is an accumulation of mobile charge carrier across the junction in forward bias. So we can say now, if we consider our N type and P type as the two electrode or two metallic plate, because the carrier concentration here and here is very high, so we can consider these two P and N type as metallic plate, and we can replace this N type and P type with two plates. Okay. So and the same will be case with the forward bias, and obviously there is some charges associated with this and this. So we can say now the PN junction will be going to behave like a capacitor. But we can notice one another thing is that the charge associated with this reverse bias is immobile charge ion, while the charge associated with PN junction in forward bias mode are mobile charge carrier. Okay. So the thing is that the capacitance associated with this mode will be different from the capacitance associated with this mode of the biasing. Okay.
So the capacitance associated with the reverse biasing mode will be going to known as transition capacitance, while the capacitance associated with the PN junction diode in forward biasing mode will be going to be known as diffusion capacitance. And the reason why we are calling this capacitance as transition capacitance, this capacitance as diffusion capacitance, we will be going to learn in the few seconds, okay, or few minutes you can say. And the third thing, we will be going to study about capacitance versus voltage characteristic of PN junction diode. So let's start first with transition capacitance, okay. So if we connect our PN junction diode in reverse biasing mode, we will be getting transition capacitance. How? We can see here. तो अभी हमने अपने डायोड को कनेक्ट करा रिवर्स बायसिंग मोड में, आपका डिप्लीशन विड्थ आपका बढ़ा, ओके। जब आपने रिवर्स बायसिंग मोड में कनेक्ट किया, डिफ्यूजन ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। बहुत ही रेयर चांस है आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूज होने के, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बैरियर बिल्डअप हो जाएगा, ओके। अगर आप इस सिचुएशन को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सिचुएशन से कंपेयर करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो कैपेसिटेंस इन्वॉल्व है आपके रिवर्स बायस के साथ, रिवर्स बायस मोड के साथ, वो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे हम लोग देखते हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ जो कैपेसिटेंस होता है उसको हमेशा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम चार्ज का ट्रांजिशन हो रहा है, ओके। तो पहले हम कंपेयर करते हैं ये दोनों केस को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका डिप्लीशन विड्थ बढ़ा, यहाँ पे इमोबाइल चार्ज आयंस हैं, इस केस में भी इमोबाइल चार्ज आयंस हैं। यहाँ पे दो मेटेलिक प्लेट है, तो ये आपका N टाइप और P टाइप मेटेलिक प्लेट की तरह काम करेगा। यहाँ पे बीच में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। और यहाँ भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटेलिक प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, तो ये दोनों हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। तो यही रीज़न है कि रिवर्स बायस मोड में जो कैपेसिटेंस होता है ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। और यही रीज़न है कि PN जंक्शन डायोड को जब हम रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ओके। अब हमारा है, ये तो हो गया आपका कि हम लोग PN जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट किए तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव क्यों करता है। अब जब हम इसका फॉर्मुलेशन करेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का, तो सभी कैपेसिटेंस के लिए ये फॉर्मूला आपका कॉमन होता है, जो कि होता है चेंज इन द स्टोर्ड चार्ज विद द चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज, ओके, यानी dQ बाई dV। तो आपका इसका जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका आता है A एप्सिलॉन बाई W, ओके। A आपका क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एप्सिलॉन होता है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी, और W होता है आपका इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का विड्थ, ओके। तो अभी इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो A हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एप्सिलॉन हो जाएगा इस एरिया का परमिटिविटी, W हो जाएगा आपका ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ ये आपका, ठीक है। अब हम लोग जब इस CT वैल्यू को वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज के साथ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आता है ये देखते हैं। CT है जो आपके डिप्लीशन विड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। CT है जो आपके W के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है आपके वोल्टेज को बढ़ाने के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आपका लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करेगा, बट ये तो फॉर श्योर है कि आप जब भी अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, W की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि V आप बढ़ाए
रिवर्स बायस में बढ़ाए तो क्या हो गया, W की वैल्यू इंक्रीज हो गया। अब अगर W का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो CT का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के साथ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इसके साथ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी एसोसिएटेड है। तो आंसर क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है हमेशा डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर के चलते होता है, और जो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आते हैं उसके चलते होता है। तो यहाँ पे तो डिफ्यूजन हो नहीं रहा है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कैसे होगा। अगर बहुत ही कम अमाउंट में डिफ्यूजन होता भी है तो हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही कम, जो कि आपके ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में कम होगा। इसलिए हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को निगलेक्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका कि रिवर्स बायस मोड में कौन सा कैपेसिटेंस है जो आपका डोमिनेंट होता है। तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू आपका फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। तो हम लोग दो केस स्टडी करते हैं। पहले केस में हम लोग जो फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं पीएन जंक्शन में, वो आपके पोटेंशियल बैरियर से कम कर रहे हैं, और दूसरे केस में उसके बराबर या ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, तो जब हमने कम फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो कम तो हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट कम तो हुआ, लेकिन ये गायब नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पे जंक्शन के पास कुछ इमोबाइल चार्ज आयंस होंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या डिफ्यूजन भी स्टार्ट होगा, आपके इमोबाइल चार्ज आयंस भी है, यानी कि मोबाइल चार्ज कैरियर भी है, इमोबाइल चार्ज आयंस भी है, यानी कि दोनों टाइप का यहाँ पे कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इमोबाइल चार्ज आयंस बहुत कम है तो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बहुत कम होगा, लेकिन आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बहुत कम होगा, लेकिन आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होगा। अब लेकिन जब हम Vf का वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा ये बैरियर है जो यहाँ पे नहीं होगा, वैनिश हो जाएगा। अब ये इधर का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है इधर जाने के लिए फ्री है, इधर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है इधर जाने के लिए फ्री है। तो अब यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा भी बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर पे डेवलप होंगे। अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा होल्स ऑलरेडी हैं, तो ये कंबाइन हो कुछ टाइम के बाद कंबाइन होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ये यहाँ पे मौजूद होंगे, इसीलिए ये चार्ज के रूप में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये रिकम्बाइन हो गया तो ऑब्वियसली दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसके साथ रिकम्बाइन कर गया तो। ठीक है, तो अगर हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात करें तो हमारा ये तो कॉमन फॉर्मूला dQ/dPV। अब अगर Q का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, Q क्या होता है, I और dt हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 0 से t टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है आपका चार्ज। ओके, तो अगर t हमारा मीन लाइफ टाइम ले लें, मीन लाइफ टाइम क्या होता है, रिकम्बाइन करने के पहले जितना टाइम लिया ये चार्ज कैरियर उसको क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू tau I। अगर dq की बात करें तो क्या हो जाएगा, tau di। अब C diff की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tau di/dp। ओके, तो अब I का जो वैल्यू होता है वो एक डायोड के केस में एक शॉकले इक्वेशन है डायोड करंट के लिए,
I इक्वल टू आई एस ई रेज टू पावर v बाई ईटा वी टी माइनस 1, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जब हम i की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो i का वैल्यू देख रहे हैं कि v के साथ आपका वैरी कर रहा है। ओके, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आफ्टर फ्यू स्टेप वी विल बी गोइंग टू गेट सी डिफ इक्वल टू टॉ आई बाई ईटा वी टी। ओके, अब जब हम इसको प्लॉट करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को, तो देखेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो करंट है वो वोल्टेज के साथ आपका एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, यानी कि हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बायसिंग वोल्टेज वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं कैपेसिटेंस वर्सेस वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं। ओके, ये वोल्टेज कैपेसिटेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। यहाँ पे हमने बाई एक्सिस पे कैपेसिटेंस लिया है और एक्स एक्सिस पे अप्लाइड वोल्टेज लिया है। तो हम लोग जब जीरो वोल्टेज पे, जहाँ पे कोई भी बायसिंग नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में हमारा दोनों टाइप का कैपेसिटेंस होगा, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी। जैसे जैसे आप राइट साइड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग जैसे जैसे आप ज़्यादा अप्लाई करते जाते हैं, आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का वैल्यू घटते जाएगा और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ओके, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो आपका वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, वो हमने प्रीवियसली देखा था। अभी हम जब रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं, तो जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हम लोग बढ़ाते हैं, डिप्लीशन भी बढ़ते जाता है, और एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिप्लीशन बिट के। तो ये CT का जो वेरिएशन है अप्लाइड पोटेंशियल का, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये आपका घटते जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। नाउ वी कैन आंसर द 3 क्वेश्चन। हाउ अ PN जंक्शन एक्ट्स लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। ये हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा PN जंक्शन जो डायोड है या PN जंक्शन सिंपली वो हमारे रिवर्स बायसिंग कंडीशन में पैरेलल प्लेट की तरह कैसे बिहेव करता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस किसके चलते था, डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। ओके, और तीसरा क्या था, वोल्टेज कैपेसिटेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये वोल्टेज कैपेसिटेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डिजाइन करने जाएंगे कोई भी सर्किट, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपका PN जंक्शन का कैपेसिटेंस वोल्टेज के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अदरवाइज अगर आपको एक्यूरेट नॉलेज कैपेसिटेंस का नहीं होगा तो आप एक्यूरेटली सर्किट को नहीं बना सकते हैं, आपका कैपेसिटेंस इफेक्ट आएगा, और आप जब हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में कोई भी सर्किट कंपोनेंट डिजाइन कर रहे होंगे तो आपका वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए आपका वोल्टेज कैपेसिटेंस कैरेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट PN जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक कर्व. PN junction characteristic curve will be like V versus I characteristic of a PN junction diode. Okay, so take care.